গৈরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং স্বাগত। 2024 ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিজেপি সরকার 400 সিট নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করবে, এটা আমরা নিশ্চিত করব। তাই প্রত্যেকটি কার্যকর্তাকেও আমি আগ্রহ করব, আপনারা এই মোদিজির থেকে তার বক্তব্য শুনে, তার ভাষণ শুনে নিজের বুথে গিয়ে প্রত্যেকটি বাড়িতে সংযোগ করে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আমাদের যে আগামী দিনের অঙ্গীকার, সেই অঙ্গীকার আমরা মানুষের সামনে রাখব। বিভিন্ন লিফলেট, বিভিন্ন যে ম্যানিফেস্টো, সেইগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেব। এই লাস্ট 7 দিন আমাদের যে কাজ, সেই কাজ বুস্তরে কাজ আমরা একদম সম্পূর্ণভাবে লেগে যাব এবং মোদিজির কথা শুনে তার কথা মানুষের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে বলে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে ভোটটাকে নিয়ে আসতে হবে। এই চোর তৃণমূলের বিরুদ্ধে, এই চিটিংবাজ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, এই কয়লা চোর, বালি চোর, চাল চোর, শিক্ষা চোর, এই যে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, সেই তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে আমাদের শপথ নিতে হবে। আর নয় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, এবার শুধুই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি। বিজেপি ছাড়া কোনো উপায় নেই। মানুষের অধিকার যদি ফিরে দিতে হয় তাহলে বিজেপিকেই ভোট দিতে হবে এবং আমাদের স্লোগান হবে, বুথে বুথে চলো, বিজেপিকে ভোট দাও। নরেন্দ্র মোদী সরকারকে, নরেন্দ্র মোদীকে আরও একবার প্রধানমন্ত্রী করতে উৎসাহিত করুন। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় শ্রী মোহন আদেক মহাশয়কে। এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন ভারতীয় জনতা পার্টির বর্ষিয়ান কার্যকর্তা মাননীয় শ্রী রাজকমল পাঠক মহাশয়। মাননীয় শ্রী রাজকমল পাঠক মহাশয়কে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভারত মাতা কি। হেলিকপ্টার নেমে গেছে, আর দেখা যাবে না, তাই একটু এবার যদি এদিকে তাকান তাহলে বলতে ভালো লাগবে। আজকে লকেট চ্যাটার্জি এবং কবির শঙ্কর বোসের সমর্থনে এই জনসভা। আপনারা অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এই রোদে পুড়ে এসেছেন এখানে। মোদিজি মঞ্চে উঠবেন তখন সামনাসামনি দেখতে পাবেন। এখন দু একটা কথা বলি, যদি আপনারা শোনেন। দিদি ভাই ভয় পেয়ে গেছে। দিদি ভাই ভয় পেয়ে গেছে কেন? তার কারণ দিদি ভাইয়ের দলে যারা খারাপ লোক ছিল তারা একে একে জেলে ঢুকে যাচ্ছে, আর যারা ভালো লোক ছিল তারা একে একে বিজেপিতে চলে আসছে। তাই দিদিভাই খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। দিদিভাইয়ের যিনি স্পোক্স পার্সন ছিলেন বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, সেই কুণাল ঘোষ, তাপস রায় যিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসে গেছেন, তার সঙ্গে একই মঞ্চে উঠে কুণাল ঘোষ বলছেন তাপস রায় যোগ্য ক্যান্ডিডেট, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নয়। তাই দিদিভাই ভয় পেয়ে গেছে। দিদিভাই নিজের দলের ওপর বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই দিলীপ ভাই পশ্চিমবাংলাটা চালাচ্ছে কাদের দিয়ে? পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে। এবার দিদির ভাইরা গিয়ে বলছে পুলিশও আর কথা শুনতে চাইছে না। তার কারণটা কি? যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে প্রথম জানতে পারে কারা? জন্তু জানোয়াররা জানতে পারে। আর ক্ষমতার বদল হবে সেটা প্রথম জানতে পারে কারা? ওই পুলিশ প্রশাসন জানতে পারে। তারা জেনে গেছে আগামী দিন তৃণমূল আর পশ্চিমবাংলায় থাকছে না, বিজেপি আসছে, তাই তারা আর বিজেপিকে সমর্থন করছে না। তারা এটাও জেনে গেছে
আজকে ত্রিপুরাতে, অসমে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজত্ব করছে, সেখানে সপ্তম পে কমিশন চালু হয়ে গেছে। পশ্চিম বাংলায় এখনো ডিএ দিতে পারে না, তাই তারা জানে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে তাদের মাইনেটা ডবল হয়ে যাবে, তাই তারা তৃণমূলকে সমর্থন করছে না। কিন্তু এখনো কিছু পুলিশ অফিসার আছে, বিশেষ করে ওপরতলার লোক, যারা বেআইনি কয়লা খাদানের পয়সা খায়, গরু পাচারের পয়সা খায়, বালি খাদানের পয়সা খায়, সিন্ডিকেটের পয়সা খায়, আর ওই হাইওয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে লরিওয়ালার থেকে বাইকওয়ালার থেকে তোলা খায়। তারা কিন্তু আজও তৃণমূলের দালালি করছে। বিজেপি করলেই কেস দিয়ে দেবে, নয় বেআইনি আর্মসের কেস দেবে, আর নয় গাঁজার কেস দেবে। এত গাঁজার কেস দিয়েছে যে সারা পশ্চিমবাংলা যদি ধান চাষের বদলে গাঁজা চাষ করা হয় তাহলেও অত গাঁজা তৈরি হবে না। তাই আমি ওই যেসব পুলিশ অফিসার তৃণমূলের দালালি করছে তাদের বলতে চাই, আমি রাজকমল পাঠক, আমার বুকে আমি অশোক স্তম্ভ চিহ্ন লাগাতে পারি না। আপনারা এখানে যারা বসে আছেন তারা লাগাতে পারে না, কিন্তু একটা পুলিশ অফিসার পারে। তাই তাদের আমি অনুরোধ করি, যারা তৃণমূলের দালালি করছে, যদি তৃণমূলের দালালি করতে হয় ওই অশোক স্তম্ভ চিহ্নটা, ওটার অনেক ইজ্জত। ওটা তৃণমূলের দালালি করতে যাবার আগে বাড়ির ঠাকুর ঘরে খুলে রেখে বুকে ঘাস ফুলে চিহ্ন লাগিয়ে তবে ডিউটি করতে যেত। আজকে দিদিভাইয়ের কোনো রোজগার নেই, টুং করে আওয়াজ হচ্ছে আর লক্ষ্মীর ভান্ডারে পয়সা ঢুকছে 1000 নয় 1200। দিদি ভাইরা, আপনারা কিন্তু পয়সাটা বাঁচিয়ে রাখবেন, কারণ এই ইলেকশনের পরেই ঠক করে যখন ইলেকট্রিক বিলটা আসবে ওই লক্ষ্মীর ভান্ডারের থেকে অনেক বেশি টাকা দিতে হবে। তাই দিদি ভাই রোজগার নেই, যা কিছু আসছে দিল্লি থেকে আসছে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আসে। তাই দিদি ভাই কি করছে, ওই পঞ্চায়েতটাকে দখল রাখতে হবে। তাই গত পঞ্চায়েতে 20,000 আসনে দিদিভাই বিরোধীদের সিট দিতে দেয়নি, প্রার্থী দিতে দেয়নি। আর কি করেছিল, সিপিএম শিখিয়েছিল কিভাবে বুথ দখল করতে হয়, আর তৃণমূল এসে শিখিয়েছে কিভাবে কাউন্টিং হলটা দখল করতে হয়। কারণ ওই পঞ্চায়েতটা যদি হাত দখল রাখা না যায় তাহলে 6 ইঞ্চির রাস্তাটা 4 ইঞ্চি বানিয়ে 2 ইঞ্চির পয়সাটা পকেটে ঢোকানো যাবে না। মোদিজি বলেছেন প্রত্যেকের মাথার ওপর, ভারতবর্ষের প্রত্যেকের মাথার ওপর বাড়ির ছাদ হবে। সেটার নাম কি? প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। সেটা মোদিজি বলেছেন প্রত্যেকের মাথার উপর চাল হবে, সেই যোজনাটার নাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। কিন্তু বাংলায় ঢুকলেই তার নাম পাল্টে হয়ে যায় বাংলা আবাস যোজনা। আপনারা যারা বিজেপি করেন তাদের কাউকে দেবে না, কাদের দেবে? তৃণমূল নিজেদের লোকেদের দিয়ে বলবে 25 থেকে 30,000 টাকা আমাকে দিয়ে দে। আজকে নীল সাদা সাইকেল দিচ্ছে, কোথা থেকে আসছে টাকাটা? মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক দিল্লি থেকে আসছে, কিন্তু অর্ডারটা প্লেস করে তৃণমূল সরকার। তাই আস্তে আস্তে সাইকেলের ওজনটা 3 কেজি কমে যায়। ওটা পাওয়ার পরে আগে সাইকেলের দোকানে নিয়ে গিয়ে না সারালে ওটা চড়া যায় না। আজকে মোদিজি বলেছেন প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে শৌচাগার করে দেবেন। আপনারা অমিতাভ বচ্চনকে টিভির মাধ্যমে দেখেছেন, অমিতাভ বচ্চন কি করেন? যারা উন্মুক্ত জায়গায় শৌচকর্ম করতে যায় তাদের ধরে ধরে শৌচাগারে পুড়ে দিচ্ছেন। কি সুন্দর শৌচাগার, আবার রংচং করা আছে, কারণ শুটিংটা হয়েছিল ওই বিজেপি শাসিত রাজ্যে। এখানে কি হচ্ছে? 3 দিকে কোনো রকমে 5 ইঞ্চি পাঁচিলের জায়গায় 3 ইঞ্চি পাঁচিল দিয়ে একটা ভাঙা টিনের দরজা লাগিয়ে এত ছোট শৌচাগার করছে যে ওদের একটা মন্ত্রী ছিল, এখন জেলে আছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আমার থেকে 2 সাইজ মোটা, ওটা ঢুকতেও পারবে না, বেরোতেও পারবে না। আজকে মোদিজি কি করছেন? প্রত্যেকটা বাড়িতে জলের কানেকশন দিয়ে দিচ্ছেন, প্রত্যেকটা বাড়িতে বিদ্যুতের কানেকশন দিচ্ছেন, প্রত্যেকটা গ্রামকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় মেন রাস্তার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। তাই
আজকে মোদি ছাড়া উপায় নেই, গরিব মানুষের জন্য মোদি। মোদি আবার ভারতকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দিয়েছেন। আজকে মোদি অঙ্গুলি হেলন ছাড়া আজকে পৃথিবীতে কোনো কাজ হয় না। আজকে আমাকে বক্তব্য শেষ করতে হবে, কারণ বক্তব্য ধরলে আমি টাইম লাগে। আজকে কিন্তু মোদিজি এসে গেছেন, নেমে পড়েছেন, বাকিরাও বক্তব্য রাখবেন। তাই আজকে এখানেই আমার বক্তব্যের বিরাম দিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় শ্রী রাজকমল পাঠক মহাশয়কে। ভলেন্টিয়ারদের কাছে অনুরোধ, আমাদের মঞ্চের বাদিকে এখনো অনেক জায়গা রয়েছে, যে মিছিলগুলো আসছে তাদেরকে মঞ্চের বাদিকে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। সকলে মিলে হাত উঁচু করে জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ। এখন মোদিজি স্বাগতম। সকলে মিলে মোদি 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 মোদি। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় 140 কোটি দেশবাসীর অভিভাবক মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী মহাশয়। সকলে মিলে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমাদের হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয়া শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জি মহাশয়া সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন হুগলি জেলার প্রসিদ্ধ জুট শিল্পে। সেই জুটের তৈরি ব্যাগ এবং হুগলির অন্তর্গত চন্দননগরে বিখ্যাত মা জগদ্ধাত্রী, সেই জগদ্ধাত্রী প্রতিমার চিত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন। সকলের কাছে করতালি, একই সাথে মোদি মোদি। একদম ধন্যবাদ জানাই। এরপর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন শ্রীরামপুর লোকসভার প্রার্থী মাননীয় কবির শঙ্কর বোস মহাশয়। শ্রীরামপুর মহেশের জগন্নাথের চিত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির হাতে তুলে দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন সম্বর্ধিত করছেন হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মাননীয় তুষার কুমার মজুমদার মহাশয়, মা দুর্গার চিত্র প্রধানমন্ত্রীজির হাতে তুলে দিয়ে। এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন শ্রীরামপুর লোকসভার প্রার্থী মাননীয় কবির শঙ্কর বোস মহাশয়। আমাদের মঞ্চে যার আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম সেই বিশ্বের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীজি, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাসজি মোদিজি উপস্থিত আছেন। সবাই ওনাকে বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আরেকবার পুরো ভারতবর্ষ মোদিময়, পুরো ভারতবর্ষ রামময়। ওনাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য জোরে বলতে হবে জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। বন্ধুগণ, আজকে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ বিকশিত ভারত হতে চলেছে। ভারতবর্ষের মর্যাদা, ভারতবর্ষের সম্মান
যেই অন্যতম জায়গায় নরেন্দ্র মোদীজি নিয়ে গেছেন, পুরো বিশ্ব জুড়ে মানুষ ওনার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমাদের ভারতের মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। উনি যেই সংকল্প নিয়েছেন বিকশিত ভারত গড়ব, আমাদের সকলকে মিলে ওনার সেই সংকল্পকে ফলাফল দিতে হবে। তাই জন্য আগামী দিন, ভোটের দিন পদ্ম ফুলে ভোট দিয়ে এবার যেই মানুষ, ভারতের মানুষ যেই সংকল্প নিয়েছে 400-র বেশি সিট নিয়ে মোদিজিকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়যুক্ত করতে হবে। আমরা যার জন্য অপেক্ষা করছি, উনি মঞ্চে আছে, আমি বেশি আমার বক্তব্য বিলম্ব করব না। আমরা আরেকবার ওনাকে সম্মান জানিয়ে, সেই যে নেত্রী এখানে আছে, যে আমাদের কার্যকর্তাদের ওপরে অত্যাচার করে যায়, যে চায় না এখানে বিজেপি আসে, কিন্তু মানুষ এবার আবেগের সাথে, ভালোবাসার সাথে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এবং মোদিজিকে আশীর্বাদ করবেন। সেই সংকল্প নিয়ে সবাই হাত তুলুন, বিজয়ের সংকল্প হাত তুলুন, দুটো মুঠি হাত তুলুন, সবাই হাত তুলুন, বলুন ভারত মাতা কি, বিজেপি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় কবির শঙ্কর বোস মহাশয়কে। এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন বাংলার অগ্নিকন্যা, আমাদের সকলের প্রিয় হুগলি লোকসভার প্রার্থী মাননীয়া শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জি মহাশয়া। আমাদের মাঝে এখন বক্তব্য রাখবেন মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। হুগলিবাসীদেরকে আমার নমস্কার জানাই। হুগলি সমস্ত শক্তি স্বরূপা মা বোনেদের আমার प्रणाम। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, 2024 का ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है और देश का आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ है। देश का भरोसा, देश के आशीर्वाद भाजपा पर, कमल पर और मोदी पर है। देश ने 10 साल में देखा है कि मोदी की मजबूत सरकार ही देश हित में है, जनहित में है। भाइयों बहनों, 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव का मतदान कल होने वाला है। 3 चरण के चुनाव से मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार करके ही रहेंगे। अब 400 पार
ये नारा नहीं है, ये 400 पार देश के कोटि कोटि लोगों का संकल्प बन गया है। और पहले 3 चरण में अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भाजपा एनडीए को तो 400 पार आप करा ही देंगे, लेकिन इस चुनाव में लिख के रखिए, ये कांग्रेस के जो शहजादे हैं ना, ये कांग्रेस के शहजादे, उनकी जितनी उम्र है कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलने वाली है। साथियों, ये जो मूड है इससे साफ है कि आपने दमदार सरकार बनाई तो भारत का दम पूरी दुनिया में दिख रहा है। और तभी पश्चिम बंगाल का हर मतदाता कह रहा है, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाइयों और बहनों, सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद बच्चों को कोई तकलीफ न हो, बच्चे दुखी न हो, बच्चे मुसीबत में न पड़े। इसलिए परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है। वो अपने वारिस को कुछ दे करके जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं। आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस है। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। विकसित भारत उनके हाथ में देकर के जाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को देखिए और पार्टियों को देखिए, वो सारे के सारे लोग देश की जनता को, आपको लूटने में ही लगे हैं। ये अपने वारिसों के लिए बंगले बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो मोदी भी तो कम नहीं है।
अगर वो अपने वारिस के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिस के लिए बना रहा हूं। और मैं मेरे वारिस के लिए क्या बना रहा हूं? अब तक मेरे वारिस गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बना दिए। मुझे वारिस को कुछ देना चाहिए ना। और 3 करोड़ पक्के घर और बनाने वाला हूं। मोदी हर घर जल मिशन चला रहा है। मोदी हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी अपनी बहनों को, बेटियों को उनका जीवन आसान बना रहा है। आज करोड़ों महिलाओं के पास उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर है। आज हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की मदद मिलती है ताकि उसके पोषण में कमी ना रहे और गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो दुर्बल न हो। मोदी ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं की छुट्टी भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। साथियों, अब मोदी एक बहुत बड़ी गारंटी लेकर आया है। मोदी देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना चाहता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों को हम नई ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का काम भी शुरू किया है। इससे खेती में आप जैसी बहनें ड्रोन क्रांति की लीडर बन रही है। साथियों, बहनों की एक बड़ी चिंता बिजली के बिल के लेकर होती है। यहां 2 सज्जन 2 कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दुख को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बना के लाए हैं। और पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है। हम भारत के लोग तो 365 दिन मां की भी पूजा करते हैं, दुर्गा मां की भी पूजा करते हैं, काली मां की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये 2 सज्जन जो बना के लाए, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना। मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। तुरंत तो नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद करूंगा। तो एसपीजी के लोग ये दोनों मेरी मां की तस्वीर बना के लाए हैं। आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एसपीजी के लोग आएंगे, उनको दे देना। साथियों, मोदी आपके लिए एक ऐसी योजना लाया है और ये आप जरूर सुनिए। मोदी आपके लिए एक ऐसी योजना लाया है जिसमें
डबल मुनाफा है। बताइए, आपको ये डबल मुनाफे वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा बताऊं? मैं बताऊं क्या है? बताऊं? एक है मुनाफा क्या, तो मोदी आपकी बिजली का बिल जीरो करना चाहता है, जीरो। दूसरा, मोदी आपके बिजली बेच करके आप पैसे कमा सके, होम इंडस्ट्री चला सके, ऐसे डबल मुनाफे वाली स्कीम लेकर के आया है। और ये योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू है, आप लोग ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दीजिए। और योजना क्या है? मोदी सरकार आपको घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपीज, 75,000 रुपया देगी। फिर आप बिजली पैदा करेंगे, घर में जीरो बिल से उपयोग करेंगे। जो अतिरिक्त बिजली है वो बेच करके कमाई करेंगे। डबल मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और अगर कोई परिवार, मिडिल क्लास का परिवार ट्रिपल मुनाफा लेना चाहता है तो भी मैं तैयार हूं। मैं बताऊं ट्रिपल मुनाफा कैसा? डबल मुनाफे के साथ साथ ट्रिपल मुनाफा। देखिए, आज आपको स्कूटी में, स्कूटर में, कार में पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये जो बिजली पैदा होगी ना घर में, उस बिजली से आप अपना स्कूटी, स्कूटर, मोटर उसको चार्जिंग भी कर सकते हैं। और आप कलकत्ते में कहीं पर भी जाना है तो मुफ्त में आपका ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, पेट्रोल का बिल भी जीरो हो जाएगा। साथियों, आप लोग मुझे बोलने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए आप। साथियों, विकास के लिए भाजपा के प्रयासों के बीच टीएमसी अपने काम में बिजी है। और उसके काम क्या है? टीएमसी का काम क्या है? टीएमसी के नेताओं का काम क्या है? गोंडो गोलो जोमी दखोल, गोंडो गोल ओ जोमी दखोल। यहां माफिया राज चल रहा है। मोदी कहता है हर घर जल। मोदी क्या कहता है? हर घर जल। मोदी क्या कहता है? आप जरा बोलिए, मोदी क्या कहता है? मोदी क्या कहता है? और टीएमसी कहती है हर घर बम। मोदी कहता है हर घर जल, और टीएमसी कहती है
हर घर बम। कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया और बच्चों का जीवन चला गया। माताओं, बहनों, बेटियों का तो यहां जीवन मुश्किल हो गया है। संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। साथियों, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। टीएमसी ने बंगाल के माताओं के, बंगाल के बाप के, बंगाल के मां बाप के सपने बेच दिए हैं। टीएमसी के पेपर लीक और भर्ती माफिया ने सबको तबाह कर दिया है। आज देखिए, इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खास सिपहसालार सारे के सारे जेल में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। और मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, पूरा देश चौंक गया। इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ निकले हैं, पहाड़, रुपयों के पहाड़। इस विश्वासघात की आप टीएमसी को सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? कड़ी से कड़ी सजा देंगे? उनको ये सजा बराबर की देंगे? क्या टीएमसी को बंगाल में एक भी सीट जीतने का हक है क्या? एक भी सीट जीतने का हक है क्या? उनकी सारी की सारी सीटें पराजित होगी कि सबको घर भेज देंगे क्या? भाइयों और बहनों, हमारे किसान हो, हमारे नौजवान हो, ये विकसित भारत की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए हुगली जिले के किसानों के खाते में जमा हुए हैं। अब भाजपा ने आलू और प्याज किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। हम पूरे देश में इन सब्जियों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इसका सीधा लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, आज रेलवे को लेकर इतना काम हो रहा है, यहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी बन गई। अंडर वाटर मेट्रो बन गई, देश की पहली।
यहां पोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मोदी भरपूर मदद दे रहा है, लेकिन यहां इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नौकरी लाने के लिए, भाइयों बहनों, ये टीएमसी वाले की कट कंपनी, कमीशन कंपनी रुकावटें पैदा करती हैं। उनको जरा सबक सिखाने के लिए चुनाव है। भाइयों बहनों, ये टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपका वोट टीएमसी को सीधा करने की ताकत रखता है और टीएमसी को सीधा करने की एटा मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, किसी जमाने में ये झूठ की राजधानी उद्योगों की राजधानी थी, लेकिन पहले कांग्रेस, वाम और फिर टीएमसी ने मिलकर सब तबाह कर दिया। आज भाजपा मेक इन इंडिया पर बल दे रही है, लेकिन टीएमसी ब्रेक इन इंडिया का नारा लगा रही है। टीएमसी समाज को तोड़ रही है, टीएमसी कानून को तोड़ रही है, टीएमसी एकता को तोड़ रही है। साथियों, ये धरती रामकृष्ण परमहंस और लाहिड़ी महाशय के व्यक्तित्व से प्रेरणा पाती है, लेकिन तुष्टीकरण की जीद में कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां आपकी भावनाओं की भी परवाह नहीं करते। ये कैसी पार्टियां हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये दल इतने वोट के भूखे हैं, इतने सत्ता के भूखे हैं और वोट बैंक से इतने दबे हुए हैं कि लोग राम मंदिर बनने से भी बहुत गुस्से में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर बना, इनकी नींद उड़ गई है।
आए दिन ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम मंदिर का भी बहिष्कार किया हुआ है। अरे 500 साल तक जिस राम मंदिर के लिए हम सबके पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों की आत्मा ये आपके कारनामे देख रही है। और ये टीएमसी कांग्रेस वाले कम से कम आपके पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान, उसका तो अपमान मत करो। अपने ही देश की विरासत का बहिष्कार, भगवान राम का बहिष्कार, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। मेरा बंगाल ऐसा नहीं है। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी आज वोट बैंक के लिए बंगाल का भी अपमान कर रही है और अपनी विरासत का भी अपमान कर रही है। साथियों, ये चुनाव पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका कीमती वोट बर्बाद ना हो। टीएमसी आज जितनी सीट पर लड़ ही नहीं रही कि वो सरकार तो क्या विपक्ष में भी कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस या लेफ्ट को वोट देने से भी आपका वोट बर्बादी होगा। सिर्फ बीजेपी को दिया आपका वोट देश में एक मजबूत स्थिर सरकार बना सकता है। इसलिए हुगली से बहन लोकेट चैटर्जी और श्रीरामपुर से हमारे साथी कबीर शंकर बोस, इन दोनों को रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सबके सब पोलिंग बूथ जीतेंगे। दोनों लोकसभा जीत करके कमल मुझे भेजेंगे। आप जब इनको वोट देंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ तो बोलूं। करेंगे? मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइएगा और परिवार के सबको बिठाकर कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। अगर यहां एसपीजी वाले हैं तो ये 2-3 माताएं बहनें कुछ तस्वीर ले आई है, जरा ले लीजिए उनके पास से। ये हमारी माताएं बहनें कब से परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान करती है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी मेहनत करके चीजें बनाई है। जरूर मेरे साथी आपसे ले लेंगे, आपसे कलेक्ट कर लेंगे और मुझे पहुंच जाएगा। सबके पास जो भी है ले लीजिए भैया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।